Okay, students, now integration question number one is of May 2017. The question number one is gradient dy over dx is given of any curve, right? And the curve passes through 3 minus 10. First, we have to calculate the equation of the curve. For equation of the curve, we have to integrate the curve. So y dash is given. Y dash equals to 7 minus x squared minus 6x. If we integrate, so we'll obtain y. It will be 7x. X squared ka integral x cube over 3, 6x का integral 6x square over 2, and 2 3s are 6, so 3x squared plus c. The conditions are given 3 and minus 10, y is minus 10. At the place of x, we have to replace x by 3, 7 3s are 21, minus 3 cube over 3 is 9, minus 3 into 3 square is 27, plus c, what is the value of c? The value of c is 5, therefore the equation of the curve is 7x minus 1 over 3x cube minus 3x squared plus 5. This is the equation of the curve. After that, the second part, express 7 minus x squared minus 6x in the form of a minus x plus b whole square. x plus b whole square मतलब a plus b whole square का फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपेंड होगा. माइनस का साइन बाहर है तो सारी टर्म माइनस में हो जाएंगी. तो a स्क्वायर minus 2ab minus b squared. Now, after the comparison of the coefficients, minus 2b equals to minus 6, you will get the value of b. It is 3, and a minus b squared equals to 7, and a is equals to 7 plus 9, and 7 plus 9 is 16. So therefore, these are the values of a and b. And after that, in the third part, find the set values of x for which the gradient of the curve is positive. So I'm just saying that y dash is equals to the value of a is 16 minus x plus 3 whole square. इस कर्व को मैं कर रहा हूं sketch by using our quadratics. A x minus h का whole square plus k. So what is the value of h? The value of h is minus 3 and the value of k is 16. This one. And 7 is the point from where the curve crosses y-axis. So the curve is like this. So the curve is like this. From 7 it crosses y-axis. अब आप देखिए कर्व पॉजिटिव कहाँ है? बिफोर -3. कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, एंड आफ्टर -3 नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव. तो therefore our answer is x is less than -3. अगर x की वैल्यू लेस देन -3 हो जाए तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पॉजिटिव रहेगा. Question number 2. What we have in this question, the diagram shows a straight line. A straight line AB, x plus y equals to 5. The straight line is here. And intersecting the curve. कर्व की इक्वेशन आपको ये दी गई. आपसे क्या कहा गया जनाब? फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. Okay, now we have to calculate the volume obtained by this shaded portion. Rotated about x-axis. Rotated about x-axis. अब जनाब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा. अगर आपको वॉल्यूम की जगह कहा जाता कि कैलकुलेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो आप क्या करते? सिंपल, आप एरिया अंडर द लाइन कैलकुलेट करते. ऐसा ही माइनस जो एक्स्ट्रा एरिया आ गया, एरिया अंडर द कर्व, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो एरिया बिटवीन द टू फंक्शंस आ जाता, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाता. क्या बात कर रहा हूं मैं? अगर एरिया कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? ए कितना है? 1. बी कितना है? 4. अगर मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम 1 to 4, एरिया अंडर द लाइन आ जाएगा. लेकिन ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा. कौन सा एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा? अंडर द कर्व. ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है. फिर एरिया अंडर द कर्व में कैलकुलेट करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास एरिया बिटवीन द फंक्शंस मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाए. लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा? वर्किंग यही होगी.
सुनिएगा, V1 में कैलकुलेट कर रहा हूं, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन। अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो हमें सब्जेक्ट किसको बनाना होगा, वाई बी द सब्जेक्ट, वाई बी द सब्जेक्ट। मींस हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना होगा। अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो अगर अबाउट एक्स एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, और अगर अबाउट वाई एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहां पर तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे, V1 कैलकुलेट होगा, y from the line y is equals to 5 minus x, ऐसा ही, from the line y is equals to 5 minus x। और इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा इसको 1 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाएगा, 1 से लेकर 4 तक। तो जब ये इंटीग्रेट करेंगे हम 5 माइनस एक्स को 1 से लेकर 4 तक, तो क्या चीज आ जाएगी, एरिया जनरेटेड बाय द लाइन अप टू एक्स एक्सेस फ्रॉम 1 to 4। क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, एरिया कैलकुलेट कर लिया, राइट। लेकिन हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा रूल है, आपने इसको कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है, स्क्वायर, और बाहर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अगर आपने स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वॉल्यूम आ जाए, और अगर आपने सिंपल इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज। अब आइए इंटीग्रेट कर देंगे, पाई ऐसे ही रहा। जैसा कि डिफरेंशिएशन में होल पावर को डिफरेंशिएट करने का रूल है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी रूल है। क्या रूल है जनाब, पहले पावर इंटीग्रेट होगी, 5 माइनस एक्स होल पावर 3 अपॉन 3। एनी कंफ्यूजन, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीपल पर आता है, यहां पर क्या हो गया, डिवीजन में आ गया। और डिवाइडेड बाय द difference divided by the derivative of the base, derivative of the base is -1। तो आंसर क्या डेवलप हुआ जरा, -π/3 5 माइनस एक्स होल क्यूब, 5 माइनस एक्स होल क्यूब, राइट। लिमिट्स कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक लिमिट्स अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करें ना करें बात एक ही है, मैं सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म पर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, पोर्शन पर। π/3 लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अपर लिमिट 5 माइनस 4 1, 1 का क्यूब 1, माइनस लोअर लिमिट 5 माइनस 1 4, एंड 4 का क्यूब 64। तो बच्चों 1 माइनस 64 इज 63, 63 डिवाइडेड बाय 3 इज 21 पाई, दिस इज V1, 21 पाई इज V1। ये V1 आ गया इन टर्म्स ऑफ पाई हमारे पास। एनी कंफ्यूजन, तो वो पूछना था कि ये जो कर्व का जो एरिया है बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये हम लोग को निकालना चाहिए था, लेकिन हमने अभी वो भी निकालेंगे V2। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग V2। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं V2। अब V2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अंडर द कर्व, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सेम लाइक दैट कि अगर A2 निकालना होता तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देते। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अंडर द कर्व निकाल देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, राइट। सो हाँ, एरिया होता तो हम कर सकते, लेकिन वॉल्यूम है तो हमें ये करना होगा, राइट। सो V2 कहां से कहां तक, वही 1 से लेकर 4 तक। कर्व की इक्वेशन क्या है, 4/x होल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं और पाई से मल्टीप्लाई करवा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, हियर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ करते हैं जनाब, पाई 4 का स्क्वायर क्या है 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16, इसको बाहर ले आए एज कांस्टेंट। इंटीग्रल के अंदर क्या रह गया, 1 से लेकर 4 तक 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले आए, x पावर -2। इंटीग्रेट करते हैं जनाब 16 पाई, इंटीग्रेट जब किया जाएगा तो इट विल बी x पावर -1/-1, so it will be -16 pi, और in the bracket we have
1/x, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट अप्लाई करेंगे जनाब, लिमिट अप्लाई करते हैं तो इट विल बी v2 is equal to minus 16 pi, upper limit 1/4, minus lower limit 1/1, minus 16 pi कितना हो गया जनाब, 1/4 minus 1/1, it will be minus 3/4, and 4 4s are 16 and 4 3s are 12। आंसर क्या आ गया, 12 pi। ये किसका आ गया आंसर, वॉल्यूम 2 का आ गया। Therefore the final volume will be volume under the line minus volume under the curve, 21 pi minus 12 pi. So the answer will be 21 minus 12 is 9 pi is the volume generated by the shaded portion. Now students, here a curve for which the gradient is this passes through this, find the equation of the curve। ठीक है जनाब, कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 3y डैश मैं लिख रहा हूं पहले 3x² माइनस 2, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं होता, ऊपर लेकर आइए। सो y किसके इक्वल हो गया, 3x³/3, 3 and 3 cancel out, x³ minus 2, it will be x power minus 2 over minus 2 cancel out, so y is equals to x³ minus minus plus 1/x² plus c। कंडीशंस आपको गिवन दी गई, when x is -1 and y is 3, so it is -1 plus 1 plus c, the value of c is 3, therefore equation of the curve is x³ plus 1/x², c की जगह c की वैल्यू plus 3, this is the equation of curve। Now students, question number 5, it's of February March 16, paper 1-2. In the first part, the diagram is, all the things are given. The diagram shows the part of the curve touches x-axis at point P. The Q lies on the curve tangent to the curve at Q. Tangent to the curve at Q crosses x-axis at R. State the x coordinate of P. P के x coordinate निकालना है। कर्व टकरा रहा है x-axis पर, तो P के अगर x-axis के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या मैं y को 0 रख सकता हूं कर्व की इक्वेशन में। कर्व की इक्वेशन है हमारे पास y is equal to 1/16 टाइम्स 3x minus 1 होल स्क्वायर, y को 0 रखिए, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 3x minus 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑन बोथ द साइड, 3x minus 1 equal to 0, द वैल्यू ऑफ x is 1/3। ये p के x कोऑर्डिनेट्स आ गए। एनी कंफ्यूजन, सिंपल, p के x कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/3। आफ्टर दैट इन द सेकेंड पार्ट, showing all working the x coordinate of r, r के x coordinate, r क्या है, टेंजेंट आ रहा है जरा, क्या है, टेंजेंट आ रहा है और ये x एक्सिस को टकरा रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वी मस्ट हैव अ कोऑर्डिनेट एंड द ग्रेडियंट। कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास q का, ग्रेडियंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा, y इक्वल्स टू 1/16 3x minus 1 का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y डैश 1/16 ऐसे ही रहा। डिफरेंशिएट कैसे होता है, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव साथ में 3, तो आफ्टर दिस वी कैन से दैट इट इज 3/8 टाइम्स 3x minus 1 expression for the gradient of tangent। So the gradient of tangent when x is 3, it will be 3 3s are 9, 9 minus 1 8, 8 and 8 cancel, the gradient of the tangent is 3 by using the formula y minus y1 equals to m x minus x1, so y minus 4 equals to 3x minus 9 and y equals to 3x minus 5, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस पे अब हमें क्या करना होगा, y को 0 रखना होगा, तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3x minus 5 and x is 5/3। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए r के। आर यू क्लियर, एनी कंफ्यूजन,
at point Q, gradient of tangent and curve both are same. नॉर्मल का निकलेगा तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब आइए जनाब, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस एरिया। अब सुनिएगा, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर मैं कर्व को P से लेकर Q तक इंटीग्रेट करूं, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5/3, सॉरी Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और P के x कोऑर्डिनेट क्या है 1/3। अगर मैं कर्व को इंटीग्रेट कर दूं 1/3 से लेकर 3 तक, तो पूरा हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। लेकिन इसमें ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गया, इसमें ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गया, तो इस ट्राइंगल को हमें क्या करना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा। तो जनाब आइए अब इंटीग्रेट करते हैं कर्व को, कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर 3 तक। जनाब इन द थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है हमें 1/16 3x - 1 होल स्क्वायर को कहां से कहां तक, 1/3 से लेकर 3 तक। 1/16 बाहर आ गया, इंटीग्रेट करना है 3x - 1 होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। लिमिट इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इन एवरी स्टेप, आखिर में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। यस फहद, 1/16 सो कैसे इंटीग्रेट होगा, 3x - 1 होल क्यूब ओवर 3, डिनोमिनेटर में बेस का डेरिवेटिव 3, so it will be 3 3s are 9 and 16 multiplied by 9 144, 3x - 1 होल क्यूब प्लस c, सॉरी प्लस c नहीं, अब तो डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 1/3 to 3। अप्लाई करते हैं लिमिट, 1/144, अपर लिमिट 3 रखा जाएगा तो 3 3s are 9, 9 - 1 8 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1/3 रखा जाएगा तो 1 1 - 1 0। सो व्हाट इज द आंसर बताइए। व्हाट्स द आंसर इन डेसिमल, 8 क्यूब ओवर 144 कहा कितना, 32/9। चल 32/9 इज द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, 32/9 इज द रिजल्ट। ये एरिया आया हमारे पास अंडर द कर्व, क्या है जनाब, अंडर द कर्व। इसमें से ट्राइंगल को सबट्रैक्ट करना होगा, तो सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो हमारे पास मौजूद है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल तो मौजूद है 4। बेस कैलकुलेट करना हो, बेस कैलकुलेट करना होगी, आर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आ रहा है बच्चों, आर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5/3। तो जनाब बेस कैसे कैलकुलेट होगी, बेस कैलकुलेट होगी अगर हमें आर से लेकर 3 तक कैलकुलेट करना हो तो इट विल बी 3 - 5/3। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, 2 2s are 4, 8/3, the answer is 8/3। Therefore, the final answer will be, area under the curve minus area under the area by triangle. Area under the curve is 32/9 minus 8/3. What is the final answer? 40/20. 40/21. 40/21. Up to you. Write in decimal, write in fraction. No issues. Last answer is 8/9, not 42/21. The answer is 8/9. Now, question number 7 is of May June 16, paper 1-1. A curve is such that this first part is about differentiation. क्या कहा गया जनाब? A point P moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing. X coordinate का rate दिया हुआ है at a constant rate of 0.3. Find the rate of change of y. हमें dy over dt कैलकुलेट करना है। चेन रूल बनाइए, dy over 1 into 1 over dt। तीसरी चीज क्या है,
dx वो क्रॉस में आ गया, dx over dt is given 0.3, but we don't have dy over dx. इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, कर्व को डिफरेंशिएट किया हुआ है हमने, dy over dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y coordinate as p crosses the y axis, as p crosses the y axis। अगर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो जनाब अगर डी वाई ओवर डी एक्स में हम x की जगह जीरो रख दें तो क्या आ जाएगा, 2 - 8, 4⁻⁻½ मतलब 1/2। सो हेयर 2 4 8, इट विल बी -2। आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2, और -2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 विल बी -0.6, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैलकुलेट कर लिया। आगे कह रहे हैं द कर्व इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब इक्वेशन ऑफ द कर्व भी हमें कैलकुलेट करनी है। कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकंड पार्ट में y डैश लिखा हुआ है 2 - 8 3x + 4⁻⁻½ इंटीग्रेट करना होगा। सो इट विल बी 2 का इंटीग्रल क्या हो गया, 2x -8। अब इसको इंटीग्रेट कर, 3x + 4 -½ + 1 is ½ divided by ½ बेस का डेरिवेटिव 3, so it will be yes it will be 2x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, वो पलट के जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 2 16/3 and 3x + 4 होल पावर ½ प्लस c। अब आप देखिए कंडीशन क्या दी गई है, कर्व क्रॉसेस y एक्सिस एट दिस, तो x क्या हो गया, 0। अगर y की जगह 4/3 रखते हैं और x की जगह 0, तो फर्स्ट टर्म है 0 -16/3, सेकेंड 3x 0 हुआ, 4⁻½ कितना हो गया, 2 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4/3 प्लस 32/3 कितना हो गया, 12। Therefore, the equation of the curve is 2x -16/3 √3x + 4 + 12. This is the equation of the curve for part B. Clear? Okay, students. Now, question number 8 from your past paper file, and the question is: a curve is such that gradient of the curve dy over dx is given. Given that the curve passes through 2 7, find the equation of the curve. कर्व की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, एंड हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बाय द गिवन ग्रेडियंट। इंटीग्रेट किया जाएगा और कर्व की इक्वेशन, सर कर्व की इक्वेशन बन कैलकुलेट की जाएगी ना। अब आइए y डैश आपको दिया गया, y डैश इक्वल्स टू, इसको अरेंज करके लिखिए, डिनोमिनेटर से लेकर आ जाइए न्यूमरेटर में, 5 - 2x², dy over dx ग्रेड डेरिवेटिव, राइट। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा जनाब, y इज इक्वल्स टू 8 होल पावर को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। रूल क्या है इसका, 5 - 2x होल पावर -1 ओवर -1, पहले पावर इंटीग्रेट हुई और साथ में बेस का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। तो 5 - 2x का डेरिवेटिव -2। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 4 8 - प्लस 4/5 - 2x plus c. The conditions are when y is 7, x is 2, 4/2 to the 4, 5 - 4 plus c. 5 - 4 is 1, so the value of c is 7 - 4 is 3. So equation of the curve is y is equals to 4/5 - 2x plus 3. This is the final equation of the curve. Now, what we have in question number 9? Question number 9 is of May June 16, paper 1-3.
द डायग्राम इज गिवन। मैं क्वेश्चन पढ़े बिना आपसे क्या कह रहा हूं कि फाइंड आउट द शेडेड एरिया। फाइंड आउट द, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। शेडेड एरिया कैसे आएगा बच्चों? एरिया इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर दीजिए कर्व को, कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2। By this, we'll get the shaded area. By this, we'll get the shaded area. अब सुनिए, stop working, just look at the book. Okay, student, या शेडेड एरिया तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द वॉल्यूम ऑब्टेन। हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द एरिया। वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस। अगर ये शेडेड एरिया एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करने लग जाए तो एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, तो हमें वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। एरिया तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा फिर जरा चेक करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, तमाम चीजें ऐसे ही रहेंगी। वॉल्यूम अगर अराउंड एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम अगर अराउंड एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट होगा, और अगर अराउंड वाई एक्सिस कैलकुलेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा। जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता है, जिसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता है, वॉल्यूम अबाउट दैट एक्सेस आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज? अब वॉल्यूम का रूल सुन लीजिए। एरिया का रूल तो ये है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए, कुछ चेंजेस मैं लेकर आ रहा हूं इसमें। वॉल्यूम इक्वल्स टू, जो भी यहां पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसका कर दें आप स्क्वायर। क्या कर दें? और मल्टीप्लाई करवा दें पाई से, तो ये विल गेट द वॉल्यूम। अब सिंपल अल्फाज में बात करें, अगर सिंपल कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया अंडर द कर्व आएगा, और अगर स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेट किया तो एरिया आया, और स्क्वायर करके इंटीग्रेट किया तो वॉल्यूम आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम नाउ? अब जरा इस पर वर्किंग करते हैं। स्टार्ट। इक्वल टू पाई फ्रॉम 0 to 2, हाफ की पावर 2, मतलब पावर खत्म, x+1 dx। इंटीग्रेट कर रहे हैं जनाब, पाई हेयर, दिस विल बी x4/4 प्लस x। लिमिट 0 से लेकर 2 तक लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करना आप लोगों को मालूम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह पर अपर लिमिट 2 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? 2 रखा जाएगा। तो 2 की पावर 4, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 प्लस x की जगह 2 रखा गया, ये हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0। फर्स्ट टर्म भी 0 हुई, सेकेंड टर्म भी 0, तो आंसर क्या आ गया? सॉरी, आंसर आ गया 6 पाई इज द रिजल्ट। 6 पाई का वॉल्यूम जनरेट होगा अराउंड एक्स एक्सिस, अगर ये शेडेड एरिया रोटेट करता है तो। Now, question number 10 is of May June 16, paper 1-3. The question is, a curve is such that dy over dx, the gradient of the curve is given, passes through 1, 9. The gradient of the curve at t is 2. Find the value of k. क्या कहा गया? द फर्स्ट पार्ट हमें ग्रेडियंट की वैल्यू भी गिवन दे दी गई, तो dy over dx की जगह मैं 2 रख रहा हूं, और x की वैल्यू भी गिवन दी गई। What is the value of x according to p? It is 1. So at the place of x, I am replacing 1 plus k. So what is the value of k? The value of k is 2 minus x minus 4. So dy over dx y dash equals to 6x squared minus 4 over x cube. Are you clear? This is the expression for the gradient of the curve. अब आइए the second part. इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें कैलकुलेट करना है, तो y डैश आपको मालूम है, y डैश क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 4 x पावर -3। इसको ऊपर लेकर आ गए, इसको ऊपर लेकर आ गए ताकि इंटीग्रेशन में आसानी
अब इंटीग्रेट करेंगे तो y किसके इक्वल हो गया 6x³/3 एंड 3 2s are 6 so 2x³ minus 4 x⁻²/-2 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 2/x² प्लस c। अब आइए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, x is 1 so it is 2 plus c. What is the value of c? 5. Therefore the equation of the curve is y is equals to 2x³ plus 2/x² plus 5 is the final equation of the curve. Are you clear? Now question number 11. It's of October November 16 paper 1-1. The diagram is given. Show that अच्छा in the first part it says the coordinates of A. हमें A के coordinates calculate करना है. At point A दोनों कर्व, चाहे this curve हम इसको चलेंगे येलो कर्व कह रहे हैं, चाहे ब्लू कर्व, दोनों कर्व A पर x एक्सिस को टकरा रहे हैं, तो A पर y एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. किसी भी कर्व में y को 0 रखकर x निकाल लो. मैं येलो कर्व यूज कर रहा हूं यहां पर. इन द फर्स्ट पार्ट y² इक्वल टू 1 - 2x, ये 0 हुआ, इक्वल टू 1 - 2x, सो 2x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हाफ. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास हाफ एंड 0. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आगे देखिएगा, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है. शेडेड पोर्शन का एरिया बच्चों जब भी कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल एक मैं पहले एग्जांपल से आप लोगों को एक चीज बता दूं. इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अपर कर्व, ये ऊपर की तरफ कर्व है, एंड दिस इज लोअर कर्व, राइट? अब सुनिएगा, अगर मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर, लेट्स से दिस इज 7, 0 से लेकर 7 तक अपर कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ऐसा ही. और फिर 0 से लेकर 7 तक हम लोअर कर्व को इंटीग्रेट करके सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो इन बिटवीन का आ जाएगा एक. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब भी इन बिटवीन कर्व्स हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व. तो यहां पर भी यही वर्किंग होगी. अब इसमें देखें, येलो कर्व ऊपर है कि ब्लू कर्व ऊपर है? येलो कर्व ऊपर है. अपर कर्व क्या है, येलो कर्व. अपर कर्व क्या है, येलो कर्व. शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंगली देखो येलो कर्व ऊपर है, शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंगली येलो कर्व ऊपर है, ऐसा ही है. तो जनाब येलो कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे, जो एरिया आएगा A1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं येलो कर्व का एरिया. y किसके इक्वल है जनाब, y इक्वल है √1 - 2x. इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर हाफ तक इंटीग्रेट करते हैं जनाब. होल की पावर है, कैसे इंटीग्रेट होगा, 1 - 2x होल पावर हाफ प्लस 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और साथ में बेस का डेरिवेटिव -2. 2 and 2 cancel out, it will be -1/3, 1 - 2x होल पावर 3/2. लिमिट्स कहां से कहां तक है, 0 से हाफ तक. अब देखें लिमिट -1/3 पर नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं है, खामखा उसको साथ रखना पड़ेगा, तो उस कांस्टेंट को अलग करो, सिर्फ वेरिएबल पर लिमिट लगाओ, कांस्टेंट साथ में चलता रहेगा. -1/3, अब लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट 1 माइनस, अपर लिमिट हाफ रखा तो 2 और 2 कैंसिल आउट, तो 1 - 1 पावर 3/2. लोअर लिमिट 1 पावर 3/2, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1/3. A1 क्या आ गया, एरिया अंडर येलो कर्व इज 1/3. एरिया अंडर येलो कर्व इज 1/3. Okay, now differentiation
ओके स्टूडेंट्स, नाउ A2 हमें कैलकुलेट करना है किसको? A2 हमें कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेट करना होगा किसको? 2x माइनस वन होल स्क्वायर को कहां से कहां तक? 0 से लेकर हाफ तक। नाउ इट्स अप टू यू, एक्सपेंड करके इंटीग्रेट कर दें या विदाउट एक्सपेंशन इंटीग्रेट कर दें। पावर 2 है, मैं विदाउट एक्सपेंशन या एक्सपेंशन दोनों के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूं। पावर 3 4 5 6 हो जाए तो पक्का है कि विदाउट एक्सपेंशन करनी। यहाँ पे हमारी मर्जी है, होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर और फिर इंडिविजुअली हर टर्म को इंटीग्रेट कर दें। मुझे हाफ तक ठीक है। ना, तो मैं विदाउट एक्सपेंशन इंटीग्रेट कर रहा हूं 2x माइनस वन होल पावर 3 ओवर 3 और बेस का डेरिवेटिव 2, so it will be 1 over 6 2x माइनस वन होल पावर 3 इंटीग्रेट कहां से कहां तक? 0 से हाफ तक इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। 1 over 6, जब हाफ रखा जाएगा तो 1 माइनस वन, और जब 0 रखा जाएगा तो -1, so this one will be 1/6। A2 कितना आ गया? 1/6 एरिया अंडर ब्लू कर्व, एरिया अंडर ब्लू कर्व। अब आप therefore the final answer will be अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है? येलो, तो मतलब A1 माइनस ब्लू कर्व के नीचे का एरिया आपने माइनस करना है, ये वाला एरिया माइनस A2, सो 1/3 माइनस 1/6, क्या आंसर आया? 1/6 is the final result।